when you're playing at the Savai Mansingh Stadium and Rajasthan Royal is the opponent, they will win most of the times. But tonight, they have broken the jinx. Every ground is not Chepauk. Every team is not CSK. And the Gujarat Titans have won by 3 wickets. Initially, मेरे को लग रहा था कि Gujarat Titans is the new RCB because only one player plays well in the entire team. The Australian they have in the team either drops a catch or does not score. Okay, they give you the title of a prince and king, but no real entitlement. However, if you have a Rahul in your team, it might be a Dravid or a Tewatia, you will win the match. Some great performance by Gujarat Titans to finally have a win under the belt. However, I would like to start with Riyan Parag Krishna. Bhai, it's such a delight to watch him. Of course, he was lucky at the start of the innings. वो 2 बार उसका कैच छूटा and दोनों बार रशीद खान ने actually उसको almost मतलब he had got him, but Matthew Wade ने दोनों बार कैच छोड़ दिया उसका. But it's such a delight to watch him. उसके बाद मतलब he never looked back. उसके उसी ओवर में you know right जब उसका 2 कैच छूटा उसने एक प्यारा सा कट मारा, you know, and he just guided the ball towards third man. और नूर को जिस तरीके से आज उसने खेला, you know, that no look shot that he hit off mid wicket, मतलब it was great to watch. And not just Riyan Parag, but I'm so happy as a Sanju Samson fan. Finally he's showing some consistency, dude. मतलब मजा आ गया उसको भी देख के. Yeah. And coming to मतलब Riyan Parag के बारे में, and I will ask you this question, Vinayak, because it is about his attitude and you are an RCB fan, so you might be able to relate to it. Brad Hogg ने ना Brad Hogg, the left arm Chinaman, जिसका वो जीप बाहर निकल के बॉलिंग करता था, he said, I am really liking when I see young Riyan Parag. He is the youngest player to hit a 50 in the history of IPL. I love his energy and I love the way he feels. I think he has really matured this year. I don't say this disrespectfully, but I think he had a bit of an ego last year. The ego is still there, but it is more in control. यार पता नहीं ब्रैड हॉग क्या बोल रहा है, उसको बोल जीप बाहर डाल के ऑस्ट्रेलिया में रहेगा. I think ego is important, यार. Attitude field में होना चाहिए, but I think he's a very very light and fun loving player. He's struggled a lot. Form ऐसे ही नहीं आता है. He's had his share of downs, and that's what he said. He kept doing the same thing, going back to the office, trying to get better, and I think performance has come this time. He's been consistent, and Sanju Samson, I think, has given him the faith. हर मैच में, you know, it's not easy with such a nice batting. उसको 2 down आने का opportunity मिल रहा है. But यार आज जो मजा आया संजू सैमसन का. I think, like Krishna said, I'm a big fan of Sanju Samson, and I love the way I think he's really cool and calm. You know, a lot of people tell there are other people who are cool and calm. I think Sanju Samson never takes it to his head. और आज best चीज था, presentator जो हमारा फॉर्मी है, उसने पूछा उसको कि where do you think you lost the match, और ये बोलता है I think in the last ball they needed 2 runs to win and they won. And that's the fact, right? But हम लोग इतना criticize करते हैं. Like imagine अगर last ball पे wicket जाता और 2 runs से जीतते, तो the bowler Avish Khan would have been a hero and no one would have spoken about anything else from their team today. Same thing with Unadkat yesterday. Punjab played such a great innings, और last ball में you know, obviously they lost by 2 runs. Now no one is making Unadkat the hero. Unadkat should have been the hero because he saved the match. It's the match is about very. No, but Unadkat was bowling, right? So they won the match. The bowling team won the match. So, but no one made Unadkat the hero. Yeah. But coming to trolling, 29 रन डिफेंड कर रहा था वो, 2 रन से जीता है. कहां से हीरो बनेगा? फर्क नहीं पड़ता. एट द एंड ऑफ द डे उसने डिफेंड किया ना. क्या होता अगर उस एक और चक्का खा लेता स्टार्टिंग में और हार जाता तो, और पंजाब जीत जाता, अगला साल ऑक्शन में आरसीबी ले लेता उसको, यही होता. और नहीं यार, हम प्लेयर्स को, फॉर्म वाले प्लेयर्स को लेके फॉर्म से बाहर लाते हैं. हम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को नहीं लेते. नहीं ट्रोलिंग के ऊपर. ओके, समथिंग ऑन ट्रोलिंग रियान पराग. ठीक है, एक उसको बिफोर मैच चालू हुआ ना लखनऊ सुपर जायंट से पहले, तो रियान के पापा ने उसको फोन किया, डू यू नो व्हाई दे ट्रोल यू?
and he said that there is expectation. People want me to succeed, and that's why I am at the receiving end. The day I will start scoring consistently, this trolls will sing my name. People have a problem with me chewing gum. If my collar is up, that's a problem. I celebrate after taking a catch, that's a problem. They have a problem with me gaming and playing golf in my off time. एंड आई जेन्युइनली वेंट टू हिज ओल्ड पोस्ट. ठीक है, रियान पराग का एक फोटो है, उसके नीचे कमेंट्स है, पान पराग, फालतू प्लेयर, ती, ती, तीन तीन 3 करोड़ वेस्ट. एंड आज उसकी पोस्ट में गया, उसमें लिखा हुआ है द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, व्हाट अ प्लेयर, दिस पोजीशन सूट्स यू. सो आई थिंक कहीं ना कहीं द ट्रोलिंग डज अफेक्ट प्लेयर्स लाइक रियान पराग, कृष्णा, बिकॉज अब एमएस धोनी को ट्रोल करो, डजंट केयर. विराट कोहली को ट्रोल करो, हार्डली केयर्स. रोहित शर्मा तो अपना मस्त वो ही डजंट केयर एट ऑल. बट रियान पराग जैसे प्लेयर को इफेक्ट होता है सोशल मीडिया, क्योंकि अभी तक वो इंडियन साइड में आया नहीं है, बट उसके साथ वाले जो है वो इंडियन टीम में है. यार जो अभी तुमने 3 नाम लिए, एम एस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग तो सब ऊपर चले गए ना यार, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए ट्रोलिंग बोलिंग के. मतलब एम एस धोनी ने ट्रोल को लिया, बोले जो कोयल का एड बना दिया, ठीक है. हाँ. विराट कोहली को मतलब आई डोंट नो उसको अगर हाँ. वहां तक वो कहते हैं मैसेजेस भी पहुंचते हैं, या रोहित शर्मा को भी अगर पहुंचते हैं. रियान पराग व्हेन हाँ. ही वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दीस ट्रोल्स, ही वाज वेरी यंग. ठीक है, ही स्टिल Yeah. वेरी, ठीक है. Still very young. हाँ, ही स्टिल एब्सोल्युटली यंग, वो अभी भी 22 साल का. बट अब तुम ये देखो कि राजस्थान ने कितना ज्यादा मतलब परसिस्ट किया उसके साथ कि नहीं यार तेरे अंदर टैलेंट है, वो तू जाएगा आगे खेलेगा. संगाकारा बैक्ड हिम, संजू सैमसन बैक्ड हिम. आज मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, ठीक है, इवन इन द सेकंड इनिंग्स, जब गुजरात का मतलब जब सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था, कुलदीप सेन बॉलिंग कर रहा था और यहाँ पे आवेश खान, ही वो बार बार आके मतलब उसको एडवाइस भी दे रहा था, इवन अलोंग विद जॉस बटलर. सो समहाउ ही फील्स वेरी कनेक्टेड, एंड मे बी आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मे बी ही फील्स एज इफ मतलब ही इज काइंड ऑफ अ सीनियर प्रो, बिकॉज ही स्पेंट अबाउट गुड 4-5 years नाउ Yeah. इन द. And captain the town. Yeah. तो उसके लिए मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तू जाके बॉलर से बात कर, टैक्टिक्स देख कि मतलब किस तरीके से चल रहा है. मे बी आई डोंट नो इफ दे हैव इट इन माइंड that if Rajasthan Royals persist with Riyan Parag for the next 4 or 5 years, maybe after Sanju Samson, he can take over the reign. ऐसा भी हो सकता है. Vinayak, I have a question for you. ठीक है? We don't have a problem with you keeping the collar up. We don't have a problem with you chewing the gum. We don't have a problem with your gaming and ball. But I think he should not go to bowlers and advise them, because Kuldeep Sen उसी ओवर में 20 रन खाया पूरे मैच में, और कमेंटेटर बोला why is he going and speaking? So why are you going नहीं and यार, speaking? आई थिंक यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा आज. रियान पराग यार बेचारे उसको छोड़ दे यार, फाइनली फॉर्म में, उसको उसके बारे में कम ही ट्रोल कर. बट संजू सैमसन को जो आंसर देना था, वेरी लॉस्ट द मैच. मेरे को लग रहा है एक गलती कर दी उन्होंने. ट्रेंट बोल्ट, भाई तुम्हारा फ्रंट लाइन स्पिन बॉलर, तुमने उससे 2 ओवर में उसने 8 रन दिए. एंड आई नो ही इज नॉट अ वेरी गुड डेप्थ बॉलर, बट यार तुम उस टाइम पे राशिद खान था, जो हु इज ऑब्वियसली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स इन T20 and is a great finisher. I think उन्होंने कहीं तो मिस. Okay, I still agree with Avesh Khan bowling the last over because he has that experience. But यार कुलदीप सेन की जगह ट्रेंट बोल्ट को देना चाहिए था. He's an international player. He could have used the slower ones or those wide yorkers. And I think somewhere Trent Bolt should have bowled. I think Sanju Samson somewhere trusted कि Kuldeep Sen would do the job for him. But यार, you can't bowl no balls when the match is so tight. उसने एक जो no ball दिया, there was a boundary of that ball, and the next ball costed 2 runs, one extra ball. And like you saw at the end, it was very, very close. And I think it was a great game of cricket. And Rashid Khan का मैं wait ही कर रहा था, Rashid Khan कब जिताएगा through his batting. And I think today Rashid played an excellent knock with Tewate of course. And I think Shubman Gill also gave a good start. पर एक्चुअली पता है कुलदीप सेन ने बिफोर द सेकंड लास्ट ओवर अच्छा डाला यार, उसने बुरा नहीं डाला. ही पिक्ड अप 2 विकेट्स. उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था. वो टॉप ऑफ जो उसने अभिनव मनोहर का भी विकेट निकाला था, वो क्लासी यार. मतलब अभिनव मनोहर को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि कहाँ गई बॉल. सो आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हाँ हम बोल सकते हैं कि मतलब यार संजू सैमसन यार, लेकिन उस टाइम पे अभिनव मनोहर और कैमरून ग्रीन सेम है भाई. अभिनव मनोहर और कैमरून ग्रीन वही अंडर कॉन्फिडेंट बैट्समैन है अभी भाई. कैमरून ग्रीन को तो कल ड्रॉप करना ही चाहिए, बिकॉज ओके विल गेट टू दैट मैच लेटर. बट यार
that was good bowling but average batsman at that point of time, underconfident or not so many runs in the bank. But I think Trent Bolt को देना चाहिए था end में एक over. हाँ, He had 2 हाँ. overs, buddy, and under 8 runs in his first 2 overs. I don't know. I think Rajasthan missed the ball there. ठीक है, राजस्थान की बैटिंग में मोस्टली संजू सैमसन और गिल थे, जो सॉरी संजू सैमसन और रियान पराग थे जिन्होंने पूरा इनिंग्स को खेला, लेकिन एक में ना वाइड गया था उनके बॉलिंग में और गिल पागल हो गया. शुभमन गिल को इतना गुस्सा मैंने देखा ही नहीं, वो पागल हो गया. एंड Actually, Dwanil, it was a wrong call. If you see, it should not have been even a wide. And actually, the third umpire thought for a second कि wide नहीं दिया था, so he said stick with your decision. और फिर वो बोलता नहीं, मैंने wide दिया है, wide दे. And I think जो third umpire था तो इसका junior था कॉलेज में, तो वो डर गया, उसने तुरंत बोला फिर से दिखाओ, और देखते बोला हाँ wide नहीं है. मेरे को लगता है धर्मसेना ने बोला वो एक और बार चेक कर, मेरे को यहाँ स्क्वायर लेग से वाइड दिख रहा है भाई. बट यार धर्मसेना का अंपायरिंग बहुत पुअर था. उसने एक प्यारा सा एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू था यार उसका, साई सुदर्शन का, उसने दिया नहीं उसको. छी यार, मतलब बहुत ही इतना ऐसा प्लम अगर डिसीजन तुम मतलब वो करोगे इंटरनेशनल एम्पायर हो गए तो मतलब बहुत पुअर था उसका एम्पायरिंग. Sai Sudarshan from Tamil Nadu, no, very close to Sri Lanka. But moving on, मेरे को ना शुभमन गिल के बारे में बात करना है. शुभमन गिल, अभी सब लोग बात कर रहे हैं ये प्लेयर आएगा इंडिया में, शिवम दुबे आएगा, वो शशांक सिंह आएगा. शुभमन गिल को 2 मिनट लग गया, कहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ. मेरा पोजीशन तो है कि नहीं यार, क्योंकि वो 2 मैच हार चुका हूँ, मैं अकेला पागल जैसा खेल रहा हूँ. And he was very, very, very determined to win. I could see the hunger and insecurity. I mean, not the insecurity, but that desire to win. Gill played really well. He played straight shots. Everything was great. But the best part about Gill was the Vishwanath Anand of cricket, Yuzvendra Chahal. Okay. Krishna, do you want to take us through that wicket where he completely outfoxed him, and Yuzvendra Chahal is not knocking on your door, he's not push your door down, he's sitting in your bedroom and refusing to leave the selectors. भाई उससे जो उसने आउटफॉक्स किया है, ठीक है, अब वो ओवर का मैं तेरे को पूरा वो देता हूँ, ठीक है. उससे जस्ट पहले, ठीक है, 2 बार शुभमन गिल ने उसको चार्ज करके मारा है ऑफ साइड, ठीक है. उसका नेक्स्ट एक और जब चौका मारा तो ही वेटेड और कट किया. अब उसको मालूम चल गया कि अगला बॉल ये वापस चार्ज करने वाला है, रश ऑफ ब्लड है, ठीक है. उसने वो वाली चाल खेली, उसने उसको थोड़ा सा आगे किया कि भाई तू गेम में आगे है, तेरी रानी भी है, तू मेरे को मार सकता है, मैं चेक पे हूँ. पर युजवेंद्र चहल ने जो चेकमेट खेला ना भाई, मतलब टॉसअप किया, ठीक है, और वाइट कर दिया उसको. उसको मालूम था कि वो आगे बढ़ने वाला है, और फिर उसके बाद जब उसने ऐसे किया ना, ऐसे these are मतलब small battles that you really want to see the game for यार, मतलब मजा आ गया. And of course शुभमन गिल played really well. Talking about his hunger, वो उसकी कैप्टनसी में भी दिख रहा है, क्योंकि वो फील्डिंग भी वैसा ही किया, ठीक है. मतलब जैसे लड़ रहा है अंपायर से एक रन के लिए. एंड आई थिंक अगर वो प्लेऑफ तक ले जाता है ना जीटी को, आई डोंट नो अबाउट द कप, उसके लिए थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा, बट अगर वो प्लेऑफ तक ले गया, आई थिंक स्टिल जीटी विल फील कि दे हैड अ सक्सेसफुल कैंपेन दिस ईयर. एंड मे बी नेक्स्ट ईयर जब वो आएगा तो आई थिंक वो थोड़ा और क्या कहते हैं अच्छी टीम बना सकता है, अच्छा कोर बना सकता है, एंड दैट्स वेयर उसको और सक्सेस मिल सकता है एज अ कैप्टन. Vinayak, talking about Yuzvendra Chahal and talking about chessboards, do you think Yuzvendra Chahal could have played better if the king was on his side? Yeah, I think one of the biggest losses for the Kings team and RCB was Chahal. I think Chahal has always been a wicket-taking bowler. यार, उसको जब भी दो, वो एक विकेट तो लेगा ही. Even if he's getting hit, like how Krishna beautifully described, I think it was exactly a game of chess. And but in fact, वो बहुत अच्छा chess भी खेल लेता है, वो अलग बात है. But he actually plans his bowlers very well. वो तो हमारा second आशीष नेहरा है इंडियन टीम का. आशीष नेहरा आज एक्चुअली मेरे को तो लग रहा था आशीष नेहरा इम्पैक्ट सब आने वाला है गेम में. इतना चार्ज हो रहा था. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्टार्ट नहीं हुआ है, बैट्समैन आउट होके बाहर नहीं गया, ये पिच पे पहुंच चुका है.
और आशीष नेहरा बैटिंग के बारे में बता रहे हैं आपको कि आपको बैटिंग कैसे करनी है। अरे आशु का आप 11 में आते थे, नंबर भाई 11 लॉर्ड्स आशु में का। छक्का है उसके पास, क्या बात कर रहा है तू? लॉर्ड्स में छक्का है हाँ, भाई उसके पास। सिक्स मारा है भाई। भाई शुभमन गिल आउट हुआ, शुभमन गिल गुस्से में बाहर जा रहा है और आशीष नेहरा फुल चार्ज होके शुभमन अंदर गिल आ को रहा है पैक वो, करके अंदर आगे आ जा रहा रहा है। है जी। एंड आई थिंक गुजरात लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड लाइक वी सेड, सी हार्दिक पांड्या को तो हटा दिया, अलग चीज है। देयर इज नो मोहम्मद शामी, द Yeah. बेस्ट बॉलर। देयर इज नो डेविड मिलर, वृद्धिमान साहा इज आउट। Yeah. And this team is like they've taken the main pillars, but still it's rounded up so well. And Shubman Gill, I think, like Dwanil rightly said, आज है ना बंदे में दिख रहा था कि मेरे को मैच फिनिश करना है. Actually, he couldn't finish the match. He was playing proper cricketing shots, so determined. Look, watching the ball so closely, proper cricketing shots, but at the good tempo. I think today he wanted to prove it. And I think that result showed in the confidence of Tewatia and Rashid Khan coming in. And obviously, sad Sanju Samson couldn't, understand exactly where they lost the match. But by maza aa gaya. Sanju Samson ने जो बोला Uh, ना, मजा आ गया. if I want to break it down the Gujarat Titans innings, ठीक है, शुभमन गिल एक तो जब आउट हुआ तो वो पागल हो गया था, क्योंकि मैथ्यू वेड जैसे प्लेयर को आपने लिया है जो ऑस्ट्रेलियन है, कृष्णा, जो भाई मतलब मैथ्यू वेड ने परेशान कर दिया इंडियन टीम को, ठीक है। वो बोल्ड हो जाता है कुलदीप सेन की बॉल में, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अभिनव मनोहर को लेके आते हो कि भाई एक हमने प्लेयर लिया है तमिलनाडु से, वो आउट हो जाता है। आप आपकी टीम में विजय शंकर है, ठीक है, कब से वेट कर रहे हैं हम विजय शंकर का कि भाई अब तो वो आउट हो जाता है। और उसके बाद एक प्लेयर आता है जिसने एक्चुअली मैच बदला है, पता है, पीपल आर नॉट गिविंग हिम इनफ क्रेडिट, इज शाहरुख खान, who knocked Ashwin out of the park in the 17th over, and a player like Ravichandra Ashwin is difficult. एंड यू कुड सी दैट शाहरुख खान जब वापस जा रहा था, the team gave him a very good reception कि हाँ चलो ठीक है, मतलब everyone was waiting for him, and you could see that because and that's the kind of impact that you have to create यार in a T20 game. It's not about now just playing out or playing out the anchor role or playing all 20 overs etc. वैसा रहा नहीं है गेम। अब आपको मतलब 20 बॉल आपने खेली है ना, तो मतलब उसमें इम्पैक्ट करने हैं, आपको 40 रन करना है, लाइक हाउ रोमारियो शेफर्ड डिड दैट डे फॉर मुंबई इंडियंस। वैसे ही शाहरुख खान ने आज किया, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट द रिसेप्शन। बट आई थिंक एंड जस्ट लाइक हाउ विनायक सेड, आई थिंक गुजरात वर वेरी कॉन्फिडेंट एज अ टीम एंड दे आर वेरी यूनाइटेड टुगेदर एज अ टीम टू। मतलब वो जीतना चाह रहे थे सारे के सारे, उनके मन में बस ये था कि मतलब कैसे ना कैसे वील हैव टू गेट द टीम एट द राइट साइड ऑफ द रिजल्ट, and that is why Shahrukh Khan gets that thing, gets that reception. Even Vijay Shankar got that reception. ऐसा नहीं उसने 16 बनाए 9 बॉलों पे, पर फिर भी उसको क्या कहते हैं वही चीज मिली, क्योंकि उन लोगों ने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, right? And similarly what happened with Tewate, and that gives you confidence, and these are the kind of games and these are the kind of wins that actually give you the confidence and then get you onto a winning streak. अब यहाँ से वो अगर 2 या 3 मैचेस और जीतते हैं, भाई नहीं नहीं, सॉरी, ये सब नहीं था। मैच जीते वो सिर्फ आशीष नेहरा के वजह से, सिंपल। आशीष नेहरा की वजह रिसेप्शन से मिलने वाला है आशीष नेहरा को। आशीष नेहरा ने सिर्फ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे मतलब वो नहीं किया, आशीष नेहरा ने पूरा कल्चर बनाया है भाई टीम का। हम लोग उसको क्रेडिट नहीं देते हैं, बट आशीष नेहरा ने पूरा कल्चर बनाया है टीम का, और इसीलिए दे वर ऑल टुगेदर टुडे। ऐसा नहीं था कि कोई अंदर बैठा है कोई बाहर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। आशीष नेहरा नहीं देखा मेरे को डगआउट में, वो अंदर शायद बैठा रहेगा, पर पूरी टीम बाहर बैठ रही थी, चेयर कर रही थी उन 2 लोगों को जो मैच जिता रहे थे, राहुल तेवाते और रशीद खान, एंड इवन शाहरुख खान फॉर दैट मैटर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आई मीन इट फेल्ट गुड टू सी देम, उनका वाइब बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के मतलब ये थोड़ा टेबल में उलट फुलट करेंगे भाई। बिल्कुल। और अभी पता है आज के मैच में अभी राजस्थान इज आल्सो नॉट अनबीटन एनीमोर। देयर इज नो टीम्स दैट इज गोइंग ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। एवरीवनस लॉस्ट अ मैच। नाउ द टेबल इज गोना टर्न। अब हो गया आज का मैच, बहुत बात कर लिया। अब है जहां ये टेबल पूरा पलटेगा। Sorry, there is one point before we move on to tomorrow's game. Okay. And then one point is, Vinayak, it's for you technically. And talking about Ashish Nehra, ठीक है, मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है और तुम सबने वो देखा होगा। गुजरात टाइटंस हैज द वर्स्ट फील्डिंग, ठीक है, गुजरात टाइटंस हैज द वर्स्ट फील्डिंग रिकॉर्ड। 13 कैचेस छोड़े, 69%, ठीक है। इसका मतलब वो कैच नहीं पकड़ रहे हैं। आशीष नेहरा एक बार बॉलिंग कर रहा था, एज लगी और स्लिप में ना राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। वो कैच को एज लगी और उसने बोला सीधी कैच नहीं पकड़ सकते यार। तो आशीष नेहरा वेरी कूल है, वेरी चैटी, बट वी नो हाउ ही गेट्स व्हेन ही गेट्स अपसेट। मूविंग ऑन,
I just want to dissect the last over because Sanju Samson said कि आप विनायक आखिरी last ball पे हारे. ठीक है? I just the 6 balls. You have a slow over in penalty which has affected teams before. ठीक है? आप 4 या 3 ही player बाहर रख सकते हो. ठीक है? उन्होंने तीनों आवेश खान में रखे थे, तीनों ऑन साइड में रखे थे, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, आई थिंक लॉन्ग, और नहीं एक डीप पॉइंट था और एक और इतने फील्डर थे शायद बाहर, और बाकी मिड ऑफ मिड ऑन आगे रखी थी मेरे हिसाब से. आवेश खान बॉलिंग अच्छी कर रहा था, एक चौका लग गया एज में, अनलकी. ठीक है? एंड इसमें बेस्ट था जब ये चौके लग रहे थे, सबसे ज्यादा खुश विजय शंकर, वो उछल उछल के नाच कूद रहा है, चौका गया चौका गया चौका गया. द बेस्ट पार्ट इज Rahul Tewatia slapped a ball over mid off, which was chased down by Butler and thrown where he got run out. Do you want to take us through Rahul Tewatia and his ability to win you a match again and again and again, something that RCB won't be familiar with? Yeah, I think, see, Rahul Tewatia, Ashutosh, Rinku Singh, these guys are all players who've played so much of competitive domestic matches, you know. They are actually used to playing this kind of situations in and out. So match situation is not a problem for them. Once they come onto the international stage and they are okay with the crowd, they've handled the pressure, it's a bread and butter for them. Ab jab Rinku Singh bahar aata hai, he does not care what is the match scenario. He has the belief that he can finish the game. Same with Tewatia and same with Riyan Parag now. Yep. See, when you are accustomed with the conditions, the pressure is out, then you are a free player. It's like you're playing in your gully or in your domestic season. And that is where I think IPL, apart from the fame and everything, it has also given these youngsters to express themselves. And then with a country with so much population and talent, I think IPL has given so many stars. But now again, who are the ones who keep themselves grounded and take this over? Like how Prithvi Shaw couldn't manage this. Otherwise, Prithvi Shaw, you know, initially I remember there was batting first innings hua tha. They made videos with him, Sehwag and Tendulkar, saying he's the next Tendulkar, is the next Sehwag. He looked similar, his straight drive, but he could not carry on. But I think these guys, especially the finishers, Rinku, Tewatia, have been the most consistent performers. हमारे में भी है यार, आरसीबी में है लोमरो, but यार वो है ना, खेलता नहीं है यार. I'll let you know. Great, I am so happy that you have picked up one player who's played only one game. Great. So we'll talk about tomorrow's game, the clash of the Titans, Karan versus Arjun, Rohit Sharma versus Virat Kohli. Krishna, first of all, देख, दोनों कैप्टन नहीं है, दोनों को आजकल बोला जाता है they are here to promote the game, but कल मेरे को लगता है ये दोनों प्रूव करने वाले हैं. No, Vinayak, we will come back to you. Unlike RCB, we will give you a chance to speak. Krishna, Rohit Sharma or Virat Kohli at the Wankhede, if I'm not mistaken. Yes. रोहित शर्मा फॉर्म में है, वो 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है. मैं बात नहीं करूंगा और स्ट्राइक रेट के बारे में क्योंकि विवाद हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई. But having said that, यार I'm very excited to see both of them. दोनों अब कैप्टन्स नहीं है, you know, for their respective sides. और ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रेशर रिलीज कर सकता है रोहित शर्मा. जब वो तो रोहित शर्मा टाइप खेल रहा है, but अभी it will be very interesting to see how RCB steps up as a team together. यार मतलब it's not just about now Kohli and Rohit, honestly speaking. Now it's about the unit Mumbai Indians and the unit RCB, because we both know मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब दोनों टीम्स में मतलब गड़बड़ चल रहा है. आरसीबी को पता ही नहीं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, और मुंबई इंडियंस को पता है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, पर जो खेल रहे हैं वो एक साथ रह के खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते. उन्होंने पिछले मैच में दिखाया जब 18,000 बच्चे थे वहां पे, जब कोई बू नहीं कर रहा था, याद नहीं दिला रहा था किसी चीज का, तो वहां पे उन लोगों ने पॉजिटिविटी था थोड़ा बहुत, नीता भाभी भी थी, तो सब कुछ हो गया. बट यहाँ पे अब आरसीबी है और अभी यहाँ पे सो दोनों टीम्स डेफिनेटली जीतना चाहेंगे, एंड आरसीबी वुड डेफिनेटली लाइक टू विन टू एंड एटलीस्ट or temporarily end, you know, put an end to the
trolls that they are getting. But yeah, I think Mumbai is too strong, yeah, मतलब at Wankhede, and especially because they won the last game, ठीक है, Yeah. और जिस तरीके से वो जीते, I don't think that RCB will have any answers for a Romario Shepherd. कैसे रोकोगे उसको भाई? So नहीं, Vinayak, कल रोमारियो शेफर्ड का नहीं, बॉलिंग नहीं आएगा, बैटिंग नहीं आएगा भाई. Vinayak, कल Vinayak, रोमारियो Vinayak, शेफर्ड का listen. बैटिंग नहीं आएगा. अच्छा, ऊपर ही खा Vinayak, लोगे the क्या question सारे to रन? Vinayak, the question to you is, what do you feel about tomorrow's Mumbai versus Virat Kohli, Mumbai versus RCB's match? Do you think any changes in the RCB? Do you want to drop यार Virat देख, Kohli for a change? Like, ओके, अच्छा खेल रहे हो बेटा. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, राइट. अभी मैं प्रॉपर आरसीबी का तुम्हें स्टोरी बताता हूँ. The entire fans and the cricket pundits who are sitting outside with the 200 rupee jersey or 300 rupee jersey are saying, भाई टीम चेंज करो, विल जैक्स को ले आओ, क्योंकि because they've seen Faf, Maxwell and Green fail, except Yeah. Kohli. There's no top power. And Lomro, they are not sure if he should be an impact, he should be in the 11. But the real problem is bowling. इनके पास स्पिनर नहीं है. करण शर्मा एक ही बंदा है जिसको स्पिन कराना आता है बॉल को, वो बाहर बैठा है. डागर और बाकी लोग जो बॉल को फेंकते हैं बस पिच पे, उनको बॉलिंग करा रहे हैं. नाउ द थिंग इज, no matter how much troll is happening outside, they say keep the noise outside. What is Andy Flower and Faf thinking? Are they still backing their players because they thought this was the best 11 when they started, right? अगर ये 4 मैच जीतते तो मे बी मैक्सवेल खेलता अभी तक, फैफ खेलता. Now the big point is, will Andy Flower take that decision, say Faf to shut up, Kohli to shut up, and say Will Jacks is playing tomorrow? If Will Jacks is playing, who is going to sacrifice? Is it Maxwell, who had the same Maxwell played that 200 innings? If I'm not wrong, he played it in Wankhede. If I'm not wrong, right? That match was in Wankhede when he Yes, it was ripped in about Afghanistan. When Yeah, जो yeah. Undertaker गिर के जिंदा होके आ गया था फिर से, और फिर 2 छक्के मारे उसने. So Maxwell has good history there. Cameron Green played for Mumbai. मुंबई ने हमें दान दे दिया उसको. और यार वो वाला ट्रेड है ना, तो performance पांड्या खराब वहां कर से दी. मुंबई गया, हाँ. मुंबई इधर से, उसने पूरा बिगाड़ दिया भाई. इट इज अ विशियस साइकिल. पांड्या वहां गया, कैमरन ग्रीन यहाँ आया, 2 टीम को बिगाड़ दिया. बट कल विल जैक्स खेलेगा भाई, एक चांस है क्या जो मेरे को बहुत मजा आएगा. विल जैक्स आया, फैफ बाहर बैठ गया और विराट हो सकता है. अरे ये So, हुआ ना. so Vinayak, that's what I'm भाई जिस coming to. तरीके से आसार लग रहे हैं ना आरसीबी के, विराट को बेंच ना कर दे वो. मैं यही डिस्कस कर रहा था लास्ट पॉडकास्ट में कि जो परफॉर्म करता है वो बाहर हो जाता है. ये गलती नहीं होगी भाई. विनायक ऑब्वियसली कृष्णा एक आरसीबी फैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, तो मतलब नहीं भाई, कहीं ना हमें अभी कहीं सिर्फ ऑरेंज पहले कैप उसने जीतना एंडी है. पहले वो एंडी आरसीबी फ्लावर को बीच में ले आया, आरसीबी कप फिर नहीं बोलता जीत है रहा. फैफ डुप्लेसी को ये करो, फिर उसने बहुत नीटली उसके कैप्टन को बोला कि तू बैठ जाएगा कि नहीं. तो इट इज द सेम व्हाट इज हैपनिंग इन आरसीबी कैंप. हमें नहीं पता, हम बस बता रहे हैं, करना है तो करो, नहीं करना देख लो. बट कृष्णा, फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, कल आरसीबी के 11 में कौन भाई मेरा भी ओपनिंग न्यूट्रल जाए? पर्सपेक्टिव ही था यार. देखा मैंने 200 रुपए का 300 से 200 रुपए की जर्सी पे आ गया तू. बट एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज, कृष्णा, तेरे को क्या लगता है कल? जेन्युइनली बता, एज अ वेल विशर ऑफ आर्स, वेल विशर ऑफ अ क्रिकेट टीम, भाई आप करो ये, देख, they say तो that शायद कम मार्जिन से it's हारोगे. important to focus on your own strengths and weaknesses and not really think about the opposition. But I think यहाँ पे Mumbai honestly is going to be extremely tough to be beaten at Wankhede. उन्होंने दिखा दिया कि अभी सूर्या चला नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका अभी पेंडिंग है चलना. रोमारियो शेफर्ड देख लिया है, ईशान किशन खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, पांड्या का भी इनिंग्स पेंडिंग है, वो बॉलिंग भी नहीं डाल रहा. जसप्रीत बुमराह को आजकल वो जो है सेकंड ओवर भी दे रहा है, एटलीस्ट वहां तक तो पहुंच रही है बात. तो आई थिंक मुंबई इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. But what RCB need to do is to first of all back their players, because that is something that they haven't done this season, honestly speaking. ठीक है, एंडी फ्लावर को नहीं पता वो क्या कर रहा है, फाफ को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कोहली को नहीं पता कि वो क्यों है इस टीम में. ठीक है, एंड लोमरोर जो खेल रहा था उसको बेंच कर दिया. अनुज रावत जो इकलौता गेम अभी तक वो जीते हैं, उसने वो जिताया, उसको बेंच कर दिया. सिराज अगर 2 विकेट और लेगा तो अगले मैच में बेंच हो जाएगा. So I really don't know what is happening with the RCB setup, but yes, what I would really want them to do is to somehow get Will Jacks and not, जो Will Jacks आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि अगर कल फेल हो जाए तो उसको एकदम से बाहर बिठा दे. ठीक है, उसको कम से कम 2-4 मौका दो भाई.
ठीक है, एंड इफ पांच यू आर, मैच, पांच मैच, हाँ पांच So इन्होंने so खेला, कम से कम पांच 4 तो so हो, Krishna, तो चलो yeah. ठीक है, So बट कम से so कम 4 तो। right. So Krishna, technically you are saying bring change in the team. Vinayak, I have a very tough question for you, and it might be a little difficult to answer. That Krishna said that RCB has to look at their strengths. So what are their strengths? भाई देख, एक चीज है, when any team loses ना, any team loses 4 out of their 5 games, you will find criticism. You will say things are not going well. ये लोग पागल है, इनसे नहीं हो पा रहा है. Things like that. But any team, Every year you will like say for yes. example, अभी Delhi, every team is that because they've not played well, they've lost. Simple. Yeah. Now the thing Correct. is, they have the players. Okay, and if on paper, forget IPL itself, if you had to choose the best 11 Yeah. in the world right now, Yeah. you would put at least 3 players from the current RCB team in the 11 of the entire IPL, just on Yeah. paper, which is almost 30%, which is great. Now the problem is, yes, I understand Virat Kohli's game style is very different. Sab uske strike rate. Yeah, it is true. In the end, the impact players are that 10 ball 30, which is the Abhishek Sharmas, the Romario Shepards, when you win. But in a longer run, what I feel is उनका planning अच्छा रहा है, वो click नहीं हुआ है. Faf has not got those excellent starts that he gets. When they've got the When he excellent was in start, they CSK. wanted, yeah, Maxwell or Cameron didn't click नहीं हुए. It's just a matter of 1 or 2 games. Like Krishna said, like कल भाई like देख, रोहित yeah. शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, ये 3 चले ना Yeah. तो बाकियों को बैटिंग ही नहीं मिलेगा. और ये 3 नहीं चले तो टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या. By they have enough power to hit it outside Wankhede. But the problem is, will the toss will play crucial. Whoever is going to chase will have the, who is going to bat first will have to put 200 there. Period. नहीं तो जीत ही ये नहीं टॉस पे सकते. आ गया मेरे से, ये टॉस पे आ गया मेरे से, आरसीबी भाई मैच हाँ यार, टॉस नहीं आ इंपॉर्टेंट रहा है मैच, तुम लोग टॉस पे क्योंकि आ मेरे को Okay. आरसीबी Okay. Hold on. Hold आरसीबी on, के guys. बॉलिंग पे भरोसा ही नहीं है. Okay. Vinayak, I'll come to you with RCB. Wait. But Krishna, एक और सवाल मैंने ना RCB के अभी Instagram पे देखा, and it's a good thing. Okay. यश दयाल, ठीक है, तो मतलब शायद इस साल आईपीएल नहीं खेल सका. एंड जब वो whatever जो रिंकू सिंह का ओवर हुआ, he was not well at that point in time. After that, there was so much of trolling that his mother also was unwell. And then for RCB to pick him up, give him the confidence, says volumes about. I think I genuinely feel that is Virat Kohli's decision to have Yash Dayal in the team. Do you think, Krishna, Yash Dayal is their ace card this time that they're going to use? they see they wanted to use him as an ace card, but unfortunately he hasn't also given you the returns as expected. ठीक है, वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीजन जब केकेआर आया था ना, जब वो लोग केकेआर से खेल रहे थे, ये लोग बार बार यश दयाल को दिखा के मतलब उसका चेहरा उतर गया था यार. यू कुड सी दैट. एंड ये सब जितना भी लोग बोलते हैं ना यार कि क्या कहते हैं ट्रोलिंग इफेक्ट नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, रिंकू बैटिंग पे आया एंड द स्क्रीन्स वर ओनली बिटवीन रिंकू एंड यश दयाल. तो ऐसा होना नहीं चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब चलो ठीक है, स्पोर्ट है यार एंड उस तरीके से होता है, बट आई थिंक जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं वो भी टीआरपी के चक्कर में ये लोग सारा क्या कहते हैं नाटक कर रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है एज अ प्लेयर आपको. सो यश दयाल इज नॉट अ बैड बॉलर यार, ठीक है. इट इज जस्ट दैट आई थिंक चिन्ना स्वामी में खेलने के लिए, इतना छोटा ग्राउंड पे खेलने के लिए आपके पास वैसे बॉलर्स नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इसीलिए आप लोग कई सारे मैचेस ऐसे हारते हो क्योंकि आपका ऑप्शन ही ठीक से नहीं, फॉर्चुनेटली. और ये हमने दिसंबर में ही बोल दिया था जब टीम ऐसी लगी थी आपकी, कि आपने ढंग से नहीं सिलेक्ट किया यार प्लेयर्स. ऑन पेपर आपको नहीं लग रहा था किसी भी तरीके से. एंड इट इज नॉट जस्ट अस बट इनफैक्ट द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड एंड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स सेइंग कि मतलब क्या ही किया है उन लोगों ने, राइट. एंड इन द लास्ट पॉडकास्ट आल्सो वी स्पोक अबाउट दिस थिंग that a lot of cricket experts are usually present at the auction, right? Guiding the owners which player to pick and which not to. The point with RCB is that there was no cricketing expert on the auction table. They probably had decided with a set of players कि हम इन लोगों को लेंगे, इन लोगों को नहीं लेंगे. कभी-कभी auction में ऐसा नहीं होता है भाई, dynamics उनके बदलते रहते हैं, right? और वहां क्या सीन हुआ कि क्या कहते हैं, अभी बाकी लोगों के जो है क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उनके वहां पे थे नहीं कोई.
So that is one major problem. And plus आपका Okay. coach भी Okay, Krishna, 1 minute. Wait. Vinayak, भाई बता दे भाई अपना फाइनल 11 तेरा कौन सा है ताकि मैं लिस्ट डाउन कर लूं. भाई देख RCB will still back their players, but I think tomorrow they need to do some changes. Will बता ना Jacks फाइनल walks into the team. Will Jacks Okay. will open with Virat or Faf. Okay. I don't mind Okay. anyone. Virat and Faf, Okay. second and third. ठीक फिर है. आएगा Glenn Maxwell. ठीक है जी. फिर आएगा Lomroor. ठीक है जी. फिर DK. ओके. ठीक है. अब है तुम्हारा फोर्थ बॉलर. अब तुम्हें लाना है करण शर्मा और वैशाख. और मतलब वो हिंदी वाला और कि इंग्लिश वाला और. हिंदी वाला और. ठीक है. करण और वैशाख, सिराज, हाँ. रीस टॉपली हाँ. और तुम अब आकाश. नहीं भाई. सॉरी, तुम्हारा एक और बैट्समैन तुम डाल सकते हो. पटीदार भी है ना भाई. पटीदार भूल गया बीच में. पटीदार एक और बैट्समैन. हाँ. ठीक है. और 11वां तुम वैशाख खिलाना है वैशाख को पक्का. अरे वैशाख पक्का. बोला वो 11 कोई और होना चाहिए. बोला. वैशाख बोल दिया वो ऑलरेडी. भाई देख फिर से बोलता हूँ. ठीक है. हाँ. विल जैक्स, विराट, फैफ, टॉप 3. ओके. मैक्सवेल, पटीदार, लोमरोर, 6 हो गए. ठीक है. देन कम्स योर bowlers. You have 5 bowlers, out of which one is Karan Sharma, Vaishak, Siraj, Reece Topley और कितनी बार तुम्हें टोपली को आकाश. खिलाएगा. सब्स्टिट्यूट भी टोपली बैटिंग का है, कीपर का है. ठीक है. डीके भाई. और डीके 11. डीके 11 कैसे हो गया भाई? एक भाई और फिर बॉलर से रहेगा ना यश दयाल. ये आरसीबी फैंस की हालत है अभी. ये क्यों खुद की 11 में कंफ्यूज हो रहे हैं. ये क्या 11 बनाएंगे भाई. हमें बस ऑरेंज कैप दे दो विराट को. हम ऑरेंज कैप लेके जा रहे हैं भाई. इनको थक सिर्फ गया. विराट कोहली से मतलब है, उसकी स्ट्राइक रेट से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है कृष्णा. इनको 11 नहीं बना पा रहे हैं यहाँ बैठ के. पता है कितने प्लेयर है तुम्हारे पास. हमारे पास बेंच में ज्यादा है भाई. 11 नहीं बेंच बने. में. इससे क्या बात है. क्या पसंद है. क्या मयंक डागर नहीं. नहीं मयंक डागर को ड्रॉप कर दो भाई. मयंक डागर की जगह करण शर्मा को खिलाओ ना. ठीक है भाई. ठीक है. तू बना कल टीम अपनी ड्रीम 11 में. भाई ड्रीम 11 में मैं तो कैप्टन लेकिन सूर्य कुमार को बना रहा हूँ. कल सूर्या मारेगा भाई. कल सूर्या आएगा वानखेड़े में. कॉन्फिडेंस बाय द आरसीबी टीम. ग्रेट कॉन्फिडेंस. कृष्णा फाइनली क्या लगता है आरसीबी मुंबई हैंड ऑन भाई देख लो ना यार, प्लेइंग 11 नहीं बन रहा है. कैसे जीतेंगे ये लोग? भाई अभी हम प्रेशर में हैं. But I think tomorrow is the do or die match for RCB. It's like a playoff race का कल डिसाइड होगा. अगर कल जीतेंगे तो चांसेस है कि हमारे कैलकुलेटर्स फिर बाहर आएंगे एंड में. अगर कल नहीं जीत पाएंगे तो इट्स लाइक कर्टन्स. एंड टुमारोज विन एक्चुअली इट्स नॉट इजी. वानखेड़े में मुंबई को बीट करना विद सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन देयर लास्ट गेम and with Romario Shepherd coming in like an angel to this Mumbai team. But I think tomorrow Virat, and I'll tell you why. Virat cannot see RCB's thinking. We got it that you will always bring Virat in the picture. But my final question to you is, आपने कर्टन रेजर जब किया तो आपने इतना बड़ा डीजे बुलाया, तो अभी जब कर्टन होएगा तो किसको बुलाओगे? पंकज उदास इन कॉन्सर्ट लाइव. भाई एक देख क्रिकेट क्रिकेट. भाई देख इतने जल्दी कर्टन्स गिराने तो आरसीबी के फैंस ना देंगे ना विराट देगा. सिंपल बात है. नहीं एक मिनट. आई जस्ट रियलाइज कृष्णा ने बहुत सही बात बोली थी पहले कि आप सारा पैसा अनबॉक्सिंग में डाल देते हो, आप सारा पैसा इसमें डाल देते हो, उसमें डाल देते हो. तेरे को पता है पैसा कहाँ से आता है? बिकॉज दे डोंट प्ले सो मेनी मैचेस, दे डोंट प्ले ऑफ, दे डोंट सेमीफाइनल, दे डोंट फाइनल. तो जितना होटल और फ्लाइट टिकट का खर्चा बच जाता है ना एवरी ईयर, नहीं, दैट इज व्हाट इज बीइंग इन्वेस्टेड. भाई एक चीज है, वी माइट नॉट हैव द कप्स इन आवर द ट्रॉली बैग, बट we've made it to a lot of playoffs. And I think out of all the other teams who've not won, be it Delhi, Rajasthan, and the other teams, I think RCB has a great record of making it to the playoffs. And obviously, they have had 3 finals. Yeah. So So you don't have cups, you don't even have a cup. So yeah, you don't have a cup. Okay, man. We have the records. We have the orange cap. So we're cool for now. But yes, I'm sorry, I'm not going to take it away. We've had a bad tournament till now. But tomorrow is a match where you will see Maxwell coming back in Mumbai.
Virat standing there tall with a strike rate of 140 and we'll win the match. एक ना मीम आया था इंस्टाग्राम पे. मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये हम नहीं बोल रहे हैं. मैं बस ये बता रहा हूँ कि एक मीम आया है, ठीक है. Okay. एक आरसीबीएन है जो शुरू से लेकर अभी तक आरसीबी के लिए खेल रहा है, पर वो Correct. पंजाबी है और वो दिल्ली से, और वो बैंगलोर के लिए खेल रहा है. पंजाब, दिल्ली और बैंगलोर तीनों ऐसी टीम्स है जो आज तक आईपीएल नहीं जीती. I don't know. I don't see a connection. However, guys, it is going to be very, very interesting to see Mumbai Indians take on RCB. The Marine Drive is close by. That means the yacht is ready and the RCB team is ready to party. Great, guys. Thank you so much for joining us back. We will But guys, but RCB sails through and this time not on a yacht. prediction बनता है कल का मैन ऑफ द मैच कौन है. एक प्रेडिक्शन बनता है कल का मैन ऑफ द मैच कौन है. रोहित शर्मा. मतलब मुंबई जीत रहा है. चलो ठीक है. कृष्णा. सूर्य कुमार यादव. which is going to be very Virat Kohli. We know it is Virat Kohli for you. We get it. नहीं भाई, कल विराट कोहली नहीं. कल का मैन ऑफ द मैच है एक बॉलर. कल होगा में नहीं है. कल सिराज का गेम है मेरे हिसाब से. सिराज को बना दो कैप्टन ड्रीम 11 का. कल सिराज फाइफर लेगा भाई. Great. If you want to listen to predictions by RCB fans, please go ahead. I would advise against it. But thank you, guys. Thank you so much for joining us for this podcast. It's been absolute fun. And please like, share, RCB subscribe. Tomorrow, yeah. And yeah, like whatever. We just hope whatever that the they do, RCB fans are back as enthusiastically as they are tomorrow. That's the only thing they can do. I will wish I'll that join you guys at so I'm hoping the match will get over by 11:20. If there's no super over, we should have the post-match presentation. And yeah, RCB when I'll join you guys tomorrow. Yeah. Superb. And I only wish the 10-year-old kid who thought RCB is going to win after he dies, I hope you're alive to see at least RCB win one match. Thank you, guys. Have a good night. Again, like, share, subscribe. Bye-bye.